Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we talk about air pollution. A brief history of air pollution. The atmosphere has long been a sink of waste disposal. जब हम बात करते हैं pollution की तो हम देखते हैं कि हमेशा से जो वेस्ट है और वो डिस्पोज किया गया एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर में बहुत सा जितने भी धुआं है जितनी भी गैसेज हैं उनको वहाँ पे डिस्पोज किया जाता है तो एटमॉस्फेयर हैज बीन अ लॉन्ग सिंक हुआ है जहाँ पे आप वेस्ट को डंप करते हैं या किसी भी चीज को जहाँ पे उसका जखीरा किया जाता है तो इट हैज बीन अ सिंक फॉर वेस्ट डिस्पोजल लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रिकग्निशन और रेजिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर पोल्यूटेंट्स हमें मिलती है हम देखते हैं कि बहुत जितनी भी स्टडीज हैं उसमें हमें मिलता है कि बहुत से पोल्यूटेंट जो है वो हवा में रिलीज मुख्तलिफ औकात में होते रहे और अगर हम देख लें एसिड रेन फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 17th सेंचुरी एंड द वर्ड स्मोक वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1905 मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फूड सो ये हमें मिलता है कि इतना पहले और ये अगेन इट ऑल स्टार्टेड बाय द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हुई थी उसके बाद ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो थे वो भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने लग गए एयर का भी बहुत बड़ा मसला शुरू हो गया और साथ साथ वाटर का भी So let us move further. The two events sparked research on air pollution and regulation to control air quality. That was the most important event. That was the London smoke of 1952. So let me here clarify again कि हमारे पास लाहौर में जो स्मोक है वो 2016 में आई है and London में स्मोक 1952 में थी. This means London was more polluted than Lahore in 1952. So you should know that Lahore and Karachi were cleaner than Paris and London at that time. And London was very much polluted that it had smoke in 1952 because again of a lot of industries at that time. So both cause of pollutants being trapped by the weather events and both killed numerous people. So the other event was the Los Angeles smoke. So this was smoke in London and other was in Los Angeles. Okay, so these are the two events. And let us now see the different pollutants that we have. So we have a stationary source of air pollutants that are stationary, not moving, relatively fixed. And we classify them in point source, that pollution entering from a point. एक खास पॉइंट से pollution का enter होना हम उसे कहते हैं. That's a point source emit pollutants from one or controllable sites. The other is fugitive sources generate air pollutants from open areas exposed to wind. Fugitive ये है कि एक जगह पे आप रिलीज करते हैं but as the wind moves so it takes it from one side to another. जैसे fugitive जो है वो भाग जाता है जब हम कहते हैं भागा हुआ मुजरिम so it is just like pollution has been released from one source but it has been fugitive and it moved to another source or area. An area source is also well-defined area within which several sources of air pollution are present. ऐसा एरिया जिसके अंदर different sources हैं air pollution की. So this is a very good example of area source and each one of the chimney is a point source. So ये सारा फैक्ट्री है इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ से पोल्यूशन आ रही है और हर चिमनी जो है वो एक खास पॉइंट सोर्स है जो उस पॉइंट से पोल्यूशन हवा में रिलीज हो रही है. सो फ्यूजिटिव सोर्स के कहीं पे पोल्यूशन है और विंड जो है उस स्मोक को लेके कहीं आगे जा रही है. मोबाइल सोर्स क्या होती है? ऐसी सोर्स जो मूव कर रही हो जैसे ट्रैफिक चल रही है कारें व्हीकल्स आर मूविंग सो दे आर प्रोड्यूसिंग स्मोक दैट इज अ मोबाइल सोर्स or a person is smoking and he is moving, so that's a mobile source. Mobile source of air pollutants move from one place to another emitting pollutants. Automobiles, trucks, buses, aircraft, ships, trains. मैंने एग्जांपल दे दिया है even a smoking person who is moving और उसका स्मोक जो है वो मूव कर रहा है, so you become a mobile source of air pollution. What are the effects? Visual qualities में फर्क पड़ता है, हमारे environment को इफेक्ट होता है, vegetation इफेक्ट होती है, animals are affected by the air pollution. Water quality even has been affected because the pollutants that settle down in the water and they also cause the water pollution. Natural and artificial structures, acid rain damage करती है buildings को, marbles को, especially marble stones को, जो कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट के stones हैं marble के, उनको बहुत damage करती है. ताजमहल is जो है उसके अंदर बकायदा damage, it is being damaged by the acid rain and then it also affects the human health. These are very severe effects of the air pollution. Significant factor in human death rate for the large cities it has been, and Athens, Greece, number of deaths higher on the bad quality days. बहुत ज़्यादा जो है especially एयर pollution की वजह से बहुत सी lung diseases हैं, बहुत सी respiratory diseases हैं जो कि आती हैं. हंगरी में उन्होंने बताया, इसी तरह यूएस में around 300 deaths पर and health costs more than $50 billion. चाइना में हेल्थ की जो कॉस्ट है एयर पोल्यूशन के हवाले से 50 to 100 बिलियन और पाकिस्तान में भी आप देख सकते हैं लाहौर में जो स्मोक है उसकी वजह से if we calculate and estimate then how much
money it is costing us in terms of health bills. So again, जो लोग जिनको मसला है अस्थमा का, जिनको दमे का मसला है, तो स्मोक में बहुत बड़ा मसला प्रॉब्लम हो जाता है, और even people are dying here in Pakistan due to air pollution as well. So we have to work on the data, and we have to work on statistics in that matter. Affects human health in several ways: toxic poisoning, cancer, birth defects, eye irritation, irritation of respiratory system, so on and so forth. These are the implications that are due to the air pollution. And then we can see viral infections जो है अगर वो हो तो उससे भी increase होती है. In fact, even I did my own research was on this, and it was even published in the newspaper Express Tribune in April, that the air pollution enhanced misery of the viral patients जो कि कोविड से लोग मुतासिर हैं. और अगर खुदा ना खास्ता एयर भी पोल्यूशन पोल्यूटेड हो, तो एयर पोल्यूशन जो है वो उनकी बीमारी को जो है वो मजीद इन्हांस कर देती है, और उनको सेहत याब होने में मजीद मुश्किल होती है. So air pollution add misery to the already patients of the viral of the COVID, or to the COVID patients. So it also increases उसकी सक्सेसिबिलिटी, यानी उसका इन्फेक्शन को सही होने में रुकावट पैदा करती है, और उसकी मजीद उसको खराब करने में एयर पोल्यूशन रोल प्ले करती है, एज वेल एज निमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस एज वेल. हार्ट डिजीजेस भी बढ़ जाती हैं अगर खुदा ना खास्ता जो है एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो और आप इनहेल कर रहे हो, दैट कैन कॉज एग्रीवेट द हार्ट डिजीज एज वेल. ठीक है, क्रॉनिक डिजीज एस्थमा, एस्थमा की मैंने बात कर दी, दमा जिसे हम कहते हैं. और अनफॉर्चुनेटली लेट मी टॉक अबाउट एस्थमा एज वेल. आई रिमेंबर एट माय टाइम there I used to see grandparents or people who are old age using inhaler, but now when I teach in universities I see young students, young लोगों को मैं देखता हूँ कि young students, graduate students, undergrad students, they are using inhaler and they are suffering from asthma. So this is very alarming rate, very alarming situation. We really need to think on this. Many air pollutants have are synergistic effects. Synergistic effect का मतलब होता है कि it has combined effect. It has combined effect. So दो से ज़्यादा pollutants हैं, वो combined effect करती हैं, और उनका combined effect ज़्यादा होता है. So do a greater damage to the lungs than combination of two pollutants would be expected to do based on the separate effects. So combined effect उनका ज़्यादा होता है, जिसमें हम आम ज़बान में कहते हैं 2 और 2 5, या 1 और 1 11. यानी अगर वो मिलती है तो उसका इम्पैक्ट ऐसे हो जाता है जैसे 5 का हो, या ऐसे हो जाता है जैसे 11 का हो. वैसे तो अगर 2 पोल्यूटेंट्स मिलने तो उनका इम्पैक्ट ये 1 + 1 2 होना चाहिए, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, उसमें बहुत सी और भी केमिकल उसकी प्रॉपर्टीज मैटर करती हैं, और भी बहुत चीजें मैटर करती हैं, बट देयर आर सर्टेन पोल्यूटेंट्स दे कंबाइन, सो देयर म्यूचुअल इफेक्ट इज मच मोर हायर देन द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स. ओके, और देन द इफेक्ट ऑफ कंबाइंड. So we have primary air pollutants, we have secondary air pollutants. कुछ प्राइमरी होते हैं जो प्राइमरी सोर्सेज से आते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं उससे वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं. मेजर एयर पोल्यूटेंट्स अकर इधर इन गैसियस फॉर्म और इन पार्टिकुलेट मैटर, हवा की सूरत में होते हैं गैसियस फॉर्म में, या पार्टिकुलेट मैटर बहुत माइन्यूट जर्रात की फॉर्म में होते हैं. पार्टिकुलेट मैटर होता है जो बहुत ही माइन्यूट जर्रात, इट कुड बी लिक्विड ड्रॉपलेट्स और इट कुड बी सॉलिड पार्टिकल्स एज वेल. ओके, and primary classification मैंने बताया, primary pollutants are directly emitted into the air, secondary pollutants are produced through the interaction of the primary pollutants at the normal atmospheric conditions. So in addition to human sources, our atmosphere contains many pollutant. हमारे पास नेचुरल ओरिजिन के भी बहुत से पोल्यूटेंट्स होते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है वोल्केनिक इरप्शन से. सिमिलरली हाइड्रोजन सल्फाइड जो वाटर गीजर्स होते हैं या हॉट स्प्रिंग्स होती हैं वहां से भी आता है. डिकेज इन द बॉग्स एंड मार्शेस से, वेटलैंड से, स्वैम्प से, वहां से भी रिलीज होती है. ओजोन इन द लोअर एटमॉस्फेयर इज रिजल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस. बट नो मोस्टली ओजोन जो है वो हमारे पास जो बनती है वो हमारे अपने प्रोसेस से बनती है. स्पेशली हाई ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं, बड़ी बड़ी बिजली की तारें, उनके नजदीक अगर आप जाएं तो आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है. उसकी रीजन ये है कि वहां पे ओजोन बन रही होती है, प्रोड्यूस हो रही होती है. व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू हाई ट्रांसमिशन लाइंस सराउंडिंग, उसके आसपास में ओजोन बनती है. So ozone is very dangerous if it is present on the ground level. It is very good if it's present in the upper atmosphere. ठीक है, दूर से अच्छी है ओजोन, आपके अगर आसपास हो तो इट इज वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस फॉर योर लंग्स. मिशन ऑफ वैरायटी ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वाइल्ड फायर, जैसे अभी आप देख सकते हैं जब खुदा ना खास्ता आग लगती है तो उससे भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन आती है. ये नेचुरल स्टॉर्म्स हैं, विंड स्टॉर्म्स, आंधी आना, और आंधी जो है मट्टी उड़ा देती है. दैट इज ऑल्सो अ नेचुरल जो है वो आपके पास सोर्स है. इसी तरह हाइड्रोकार्बन सीप्स, हाइड्रोकार्बन जो प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर, वो खुदा ना खास्ता अगर लीक आउट हो जाए, गैसेस होती हैं,
which are present, and or they sometimes seeps down due to certain processes, natural processes. So it also creates problems. These are 6 criteria pollutants जिनकी बेस पे हम एयर को क्लासिफाई करते हैं. So if these are present in the air is considered as pollutant because these are the criteria pollutants which define the criteria for air quality. इनकी खास quantity है, इनकी खास amount है, but these are the 6 dangerous criteria pollutants: sulfur dioxide, nitrogen oxides, carbon monoxide, ozone, particulate matter, and lead. Sulfur dioxide is known as SO2, colorless, odorless gas, emitted and converted into sulfate, normally emitted from the coal power plants, from industrial processes. ठीक है, and deposition है उसकी wet और dry होती है, but major source है वो power plants. So what does it do? It affects on the plants and animals, injury to death, even cause death to animals and plants, corrosion of paints and metal surfaces, और एसिड रेन कॉज करने में बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने भी सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है जब एसिड रेन होती है उसमें ये सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में आती है, एंड इट डैमेजेस प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन as well, and also the buildings that are present here. Nitrogen oxides occur in many forms in atmosphere, but largely emitted into 2 forms: nitric oxide and the nitrogen dioxide. So these are the 2 forms which are dangerous, both subject to emissions regulation, and both are the contributor to smoke. दोनों जो है वो contribute करती हैं smoke में, और acid rain में इनका बहुत बड़ा रोल होता है along with sulfur dioxide. So NO2 and SO2 are the main gases for the acid rain, and NO2 also contributes to the smoke. ठीक है? All NO2 are emitted from the human sources. This is very alarming, and automobiles and power plants that burn fossil fuels are the major source. And environmental effect includes irritation to eyes and membranes, and suppress plant growth. Carbon monoxide is highly dangerous gas, colorless, odorless gas. Even at long concentration, is extremely toxic. Binds to hemoglobin in blood and create lots of problems. और खुदा ना खास्ता जब ये हीटर चलते हैं, जिस तरह सर्दी है उसमें गैस के हीटर चलते हैं, सो अगर कमरा बंद हो तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है, एंड दैट कैन किल, और आपको पता भी नहीं चलता, और नींद में आप जो है वो इट कैन किल पीपल व्हाइल स्लीपिंग, एंड you can't even awake from the sleep because that is the dangerousness of this gas. So it's highly dangerous. इसलिए कहते हैं कि हीटर बंद करके आप उसको निकाल के कमरे से बंद करके बाहर सोएं, खुदा ना खास्ता ये गैस इकट्ठी ना हो, because it's a silent killer. Ozone and other photochemical oxidants. Photochemical oxidants result from atmospheric interaction of nitrogen oxide. So nitrogen डाइऑक्साइड जब बनती है और उसके साथ सनलाइट हो, उसके नतीजे में ओजोन जो है वो डेवलप हो जाती है विद फोटोकेमिकल रिएक्शन. मैंने बताया हाई ट्रांसमिशन लाइन जो है वहां पे बन रही होती है, इवन फोटोकॉपी मशीन जो होती है उसमें भी ओजोन बनती है. ठीक है, most common is ozone 3, colorless, slightly sweet in odor, and very active chemically and oxidizes. Beneficial in the upper atmosphere, it is very beneficial because it protects us from the harmful rays of ultraviolet rays of sun, but at the lower atmosphere it is highly dangerous. ठीक है, so health standards are often exceeded in urban areas. इसके जो effects हैं, kill leaf tissue at high concentration, damages eye and respiratory system, आपके lungs की flexibility को बहुत damage करती है, breathing difficulties जो है वो cause करती है, very very dangerous because it's highly reactive gas. Particulate matter जो कि मैंने बताया ज़रात हैं, इसके 2 साइज हैं, एक है particulate 10, एक है particulate 2.5. 10 का मतलब है जिसका साइज 10 माइक्रोमीटर में होता है या 10 माइक्रोन होता है. 10 माइक्रोमीटर का मतलब है 10 raised to power -6 मीटर. So it is very small in size, and it is ऐसे ज़रात होते हैं सॉलिड के या वाटर के जो हवा में मौलिक होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर, या उर्फ आम में हम पीएम भी कहते हैं इसे. So PM10 is made of particles less than 10 micrometer in diameter, present everywhere but high concentration on the specific. हर हाई कंसंट्रेशन है वो खास नुकसानदेह है, causes specific dangerous, specific types are dangerous. Much particulate matter easily visible at smoke, soot और dust की सूरत में नजर भी आ रहा होता है हमें. जो 2.5 है और उससे छोटा जो है, that is very dangerous. It enters not only your blood, it not only enter your lungs, but it can also enter your blood as well. That is the dangerousness of this. ये 2.5 के इससे कम जो होता है, easily inhaled to the lungs and then absorbed into the bloodstream, and therefore ये जो है ये खुदा ना खास्ता हार्ट डिजीज भी कर सकता है और भी प्रॉब्लम कर सकता है once it's part of the bloodstream. And similarly there are small particles even less than 0.18 micrometer and released, and they are related with the heart disease. ठीक है, तो very dangerous again particulate matters.
और इनको हम डिफरेंट तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। एक रीजन एक जो है स्टैंडर्ड वो TSPB यूज किया जाता है, टोटल सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर, कितने हैं पार्टिकल्स, टेंड टू बी हाईएस्ट इन लार्ज सिटीज अगेन इन डेवलपिंग कंट्रीज। और ये आप देख सकते हैं एयर क्वालिटी, और चाइना की कितनी बुरी हालात है, चीन की और कलकत्ता और दिल्ली की भी देख सकते हैं। इसमें पुराना डाटा है हमारे पास, अदरवाइज अब लाहौर और कराची भी इसमें शामिल हो गए हैं, और उनके कई जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो एनुअल मीन कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, विच इज हाईली डेंजरस। और WHO का स्टैंडर्ड बताया हुआ रेड लाइन है, आप देख सकते हैं सारे सिटीज जो हैं वो रेड लाइन से क्रॉस करते हैं, सिर्फ US के और जापान के सिटीज हैं जो अंडर फॉलो कर रहे हैं, बाकी पाकिस्तान के भी सिटीज जो हैं अब वो इस लाइन से क्रॉस कर चुके हैं। This study estimates that 2 to 9% of human mortality in cities is associated with particulate matter. ये अब स्टडीज आ रही हैं कि 2 से 9% तक जो डेथ्स हैं वो इस वजह से होती हैं, with lung cancer and bronchitis. Again, bronchitis is a disease of lungs, especially hazardous to elderly and those with asthma. Especially बुरे लोग मुतासर होते हैं और जिनको अस्थमा का मसला होता है, तो और प्लांट्स में भी डिपॉजिट हो सकती है। It can also affect the absorption of CO2 and ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन जो होती है उसकी ट्रांसपोर्ट भी एक प्रॉब्लम करती है। इट ऑल्सो ब्लॉक सनलाइट एंड मे कॉज क्लाइमेट चेंज। अगर बहुत ज्यादा माइन्यूट तादाद में पार्टिकुलर मैटर हवा में चला जाए, इट कैन कॉज ह्यूज चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर एंड कॉज ग्लोबल डिमिंग और डिमिंग ऑफ लाइट एज वेल। जब बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है, जिस तरह हमारे पास स्मोक हो जाती है बहुत ज्यादा, और उसके अंदर बहुत ज्यादा पार्टिकुलर मैटर होता है, तो आप जब इनहेल करते हैं नुकसानदेह भी है, लेकिन आप देखते हैं सूरज की शुआएं नहीं आ पाती। That is known as global dimming, gradual reduction in the solar radiation that is the Earth's surface. So it is also, it cools the atmosphere, lessen the global warming, but it has implications, it has severe health implications. Lead जो है वो भी बहुत नुकसानदेह है, it is part of automobiles and also part of the petrol that is burned in the cars, the vehicles. Gasoline में भी ऐड होता है, it is emitted in air with exhaust and spread widely around the world in soils and water and along the roadways. Once in the soil, it can also enter the food chain. Again, it's very dangerous. So air toxins हैं हमारे पास कुछ जो कि बहुत severe हैं, वो थे criteria pollutants. अब कुछ toxins हैं that are known as suspected to cause cancer and the CSF problems. So these are special. इनकी बहुत थोड़ी तादाद भी, बहुत माइन्यूट तादाद भी बहुत डेंजरस होती है, and they are highly toxic and highly dangerous. तो इसमें हमारे पास लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एक्सपोजर, तो मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म भी एक्सपोजर हो तो बहुत डेंजरस होता है, लॉन्ग टर्म हो तो फिर वैसे ही उसके ज्यादा बहुत नुकसान हैं। Gases, metals, organic chemicals that are emitted in small volumes that are part of the air toxins causes respiratory, neurological, reproductive और immune diseases, कितनी ज्यादा diseases cause कर सकती हैं हर उसमें। तो इसमें देख सकते हैं 150 से ज्यादा एयर टॉक्सिन जो है क्लासिफाई किया गया, उनके स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए। उनमें से कुछ ये हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड गैस, बेंजीन, मेथनॉल। हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ हाईली टॉक्सिक कोरोसिव गैस, और इसका रोटन एक स्मेल होती है, कोई चीज खराब हो जाए। इट्स प्रोड्यूस फ्रॉम अगेन फ्रॉम स्वम्प्स, बॉल्स, वेटलैंड्स, वहां से बनती है। जिधर में ह्यूमन इंडस्ट्रियल प्लांट्स दैट प्रोड्यूस पेट्रोलियम और सीमेंट, जहाँ पे मेटल्स बनते हैं वहां ये बनती है, और इसके इफेक्ट जो हैं, it damages the plants, health problems ranging from toxicity even to death to humans or animals. See how severe and dangerous this gas is. Hydrogen fluoride, extremely toxic to gaseous pollutants, very small amount में भी बहुत dangerous है, और रेस्ट्रिक्टिविटीज कैसे आती है, कोल गैसिफिकेशन कैसे आती है, ठीक है, इवन एज लो एज 1 ppb, 1 पार्ट पर बिलियन, यानी 1 अरब में 1 हिस्सा भी अगर इसका है तो भी ये प्लांट्स एनिमल्स के लिए नुकसानदेह है। Dangerous to grazing animals because of forest plants can become toxic when exposed to this gas. Methyl isocyanate इस गैस का भी बहुत ये भी बहुत नुकसानदेह है, बहुत हाई एयर टॉक्सिक है, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में भोपाल में इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे ये गैस रिलीज हुई थी एक पेस्टिसाइड प्लांट से, और बहुत से लोग देहात के लोग थे मर गए थे, और बहुत से जानवर जो थे मर गए थे। उसको भोपाल ट्रेजिडी भी कहा जाता है, भोपाल इंसिडेंट भी कहा जाता है। Colorless gas cause severe irritation to eyes, nose, throat, and lungs. Breathing the gas only in few parts per million can start violent coughing, swelling of lungs, bleeding, and even death. ठीक है, less exposure can also cause variety of even including loss of sight. तो मैंने बताया ये इंतहाई डेंजरस है। कुछ ऐसे गैसेज हैं जिनको VOC कहते हैं, जो उड़ जाती हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, पेट्रोल पंप के साथ बहुत ज्यादा स्पेशली होते हैं। जब आप वहां पे होते हैं तो पेट्रोल हवा में उड़ रहा होता है, उसकी स्मेल भी होती है, और साथ ही बहुत सी गैसेज हैं
volatile gases जो उड़ जाती हैं, variety of organic compounds used in solvents industrial processes मैंने बताया, ड्राई क्लीनिंग, डीग्रीजिंग और ग्राफिक आर्ट्स जो हैं वहाँ पे भी इस्तेमाल होते हैं, स्पेशली जहाँ पे स्प्रे किया जाता है, पेंट किया जाता है स्प्रे वाला, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं, उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और ये उड़ते हैं, हवा में शामिल होते हैं। हाइड्रोकार्बन हैं कंप्राइजेज में वन ग्रुप ऑफ VOCs और थाउजेंड ऑफ हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट इन नेचुरल गैस, मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ये उनकी टाइप्स हैं। और सनलाइट में जो है ये रिएक्ट करते हैं VOCs और स्मोक बनाते हैं, जिसे हम फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं, दैट इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ VOCs। जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो, बहुत ज्यादा ट्रैफिक का धुआं हो और सनलाइट हो तो फिर वहां पे फोटोकेमिकल स्मोक बन जाती है। 50% ऑफ हाइड्रोकार्बन एमिशंस आर एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, प्राइमरी ह्यूमन सोर्सेज आर ऑटोमोबाइल, मैंने बताया ऑटोमोबाइल्स आर द मेन सोर्स ऑफ VOCs। अब हम देखते हैं स्मोक को। द टर्म वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1905, मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग दैट प्रोड्यूस अनहेल्दी एयर। दो टाइप्स हैं इसकी, एक फोटोकेमिकल स्मोक है जिसे LA टाइप भी कहा जाता है, लॉस एंजलिस टाइप ऑफ स्मोक और ब्राउन एयर। दूसरी है सल्फरस स्मोक जिसे लंदन टाइप ऑफ स्मोक भी कहा जाता है, ग्रे एयर और इंडस्ट्रियल स्मोक। दोनों की जो फॉर्मेशन है वो डिफरेंट है। फोटोकेमिकल स्मोक मैंने अभी बताया है, इट इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ VOCs, नाइट्रिक ऑक्साइड डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑटोमोबाइल। ज्यादा ऑटोमोबाइल होंगी और वहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड होगी तो फिर ये फोटोकेमिकल स्मोक इन द प्रेजेंस ऑफ सन डेवलप हो जाती है। सल्फरस स्मोक इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल और ऑयल एट लार्ज पावर प्लांट। सल्फरस स्मोक जो है वो बनती है जब बहुत ज्यादा सल्फर वाला कोयल या कोयला जलाया जाता है और उसके नतीजे में जो पोल्यूशन आती है उससे बनती है सल्फरस स्मोक। So this is a flow chart. You can see sun, solar radiation in urban areas, nitrogen oxide develop. हमारे पास है organic compounds हैं. With presence of inversion layer, trapping pollutants, concentrated photochemical smoke is produced. So this is how the photochemical smoke is produced, and it is again due to organic compounds, VOC, volatile organic compounds that are present, and also nitrogen oxide that are present due to automobiles or power plants. और उसके नतीजे में ये develop होती है. And this is how the sulfurous smoke is developed. Burning of coal or oil in an urban area releases sulfur dioxide and the particulates mixed with it. So concentrated sulfurous smoke or gray air smoke is being made. Future trend for urban areas, there is optimistic view and then there is a pessimistic view. एक optimistic view है कि inshallah now we have the technologies, we have the equipments to clean our air, so air quality will continue to improve because now the laws are being there and now there is more sickness on that. So because we know so much about the source of pollution, we have developed effective ways to reduce it. Pessimistic view है कि in spite of this knowledge, population pressure, economics will dictate that what happens in many parts of the world, and the result will be poor air quality in many locations. So they are the both views that exist today in the present world, and I hope कि optimistic view जो है वो सच हो और हम भी optimistic view को support करते हैं कि air pollution को हम control कर सकें. Developing countries, less developed countries with growing population are more prone to air pollution. जो जिस तरह हमारे पाकिस्तान है, इंडिया है, जहाँ पे हम we are less developed countries, we don't have technology, with growing population. हमारे यहाँ मसाइल बहुत हैं, जिस तरह लाहौर में स्मोक का प्रॉब्लम है या और शहरों में अब हमारे पास एयर पोल्यूशन क्वालिटी, एयर की क्वालिटी बहुत डिक्रीज कर रही है और पोल्यूशन राइज भी है. हमें देखना पड़ेगा. We don't have the financial base necessary to fight air pollution and we really need to work on that. ठीक है. Attempts to reduce air pollution होनी चाहिए. Shutting down oil refinery, कुछ जगहों पे गवर्नमेंट ने काम किया है. zigzag plant जो है वो इंट्रोड्यूस की हैं. इसके अंदर जो भट्टे हैं हमारे, ordering industrial plants to relocate. Air pollution, however, will continue to be a problem if unable to control vehicle use. Vehicles को हमें देखना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आना होगा. गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई है, उसको देखना होगा. हाइब्रिड कार्स की तरफ आना होगा, फ्यूल एफिशिएंट कार्स की तरफ आना होगा ताकि हम एयर पोल्यूशन कम से कम हो कॉज करें. स्पेशली हमारे जो व्हीकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉज करती हैं. कंट्रोल के लिए जो स्ट्रेटजीज हैं वो यही हैं कि कलेक्ट, कैप्चर, रिटेन द पोल्यूशन बिफोर दे एंटर द एटमॉस्फेयर, रिडक्शन ऑफ एमिशंस थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी, कंजर्वेशन मेजर्स इज प्रेफर्ड. आप फ्यूल एफिशिएंट कार्स को यूज करें, आप टेक्नोलॉजी जो एडवांस है उसको यूज करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अपने आप को ट्रांसफर करें, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को यूज करें. स्मोक जो इंडस्ट्रीज में होता है वहाँ पे स्मोक स्टैक्स में स्क्रबर इस्तेमाल की जाते हैं कि स्क्रबर जो है वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, सल्फर डाइऑक्साइड को अमाउंट को कंट्रोल करता है. सो हमारे पास टेक्नोलॉजी है. फिल्टर्स आर देयर नाउ, वी कैन यूज एयर फिल्टर्स
We can have big air filter towers that can clean the polluted air and that can capture the pollutants and don't release the pollutants in the atmosphere. सो 1990 में एक क्लीन एयर एक्ट आया था जो कि यूएस में था, उसकी कुछ अमेंडमेंट्स हैं और उसके बारे में काफी अब तो दुनिया में भी है। फिर वो क्लीन एयर एक्ट और उसके बाद क्लीन वाटर एक्ट जो था, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट्स। कंप्रिहेंसिव रेगुलेशन एनेक्टेड बाय द यूएस कांग्रेस दैट एड्रेस एसिड रेन, टॉक्सिक एमिशंस, ओजोन डिप्लीशन एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। और 2003 में अकर हुआ था जिसमें कंपनीज को कहा था कि वो अपग्रेड करें न्यू पोल्यूशन कंट्रोल्स की तरफ, और इसी तरह पूरी दुनिया में भी डिफरेंट लॉज जो थे वो पास हुए थे और जो है उस पर अब काम हो रहा है। Also calls for the control of nitrogen dioxide, reduced by 10 million tons, toxins, especially those causing cancer, ozone depletion in the stratosphere, and production of all the CFC। ये कुछ मेजर चीजें थी जो इसमें फोकस किया गया था। और आपको याद है कि हमने बचपन अब तो काफी ज्यादा इस पर फोकस हो रहा है कि CFCs ऑलमोस्ट बैन हो गए हैं और तकरीबन जितने भी रेफ्रिजरेटर्स हैं, कूलेंट्स हैं या आपके बॉडी स्प्रेज हैं, उनके अंदर लिखा होता है कि दे आर CFC फ्री। So air ambient air quality क्या है, which is very important। जो हम एयर की क्वालिटी मेजर करते हैं उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, important because they are tied to the emission standards that attempt to control air pollution। so हम देखते हैं और PM 2.5 ओजोन के हवाले से काफी सख्त स्टैंडर्ड्स हैं और इसे AQI कहा जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। हम जब देखते हैं लाहौर का तो हम जो मेजर कर रहे होते हैं वो ये होता है कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है जब हमारे पास स्मोक होती है। इट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब एयर पोल्यूशन ऑन अ गिवन डे। So इसकी अमाउंट है, अभी अमाउंट की हम बात करते हैं। इट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ 5 मेजर पोल्यूटेंट्स, पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वो जो मैंने बताया क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स हैं, उनमें से जो 5 हैं उनको लिया जाता है और उसकी बेस के ऊपर हम एयर क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, क्राइटेरिया को डिफाइन करते हैं। If air quality value is greater than 100, it is normally considered unhealthy। इसको 100 से कम होना चाहिए। अगर ये 200 से ज्यादा हो तो इसका मतलब है अलर्ट, एयर पोल्यूशन अलर्ट जारी हो जाती है। If it is above 300, then it is hazardous to all people, and if it is above 400, it is an emergency, air pollution emergency। और खुदा ना खास्ता हमारे पास तो एयर पोल्यूशन जो है वो 400 से भी ज्यादा और बल्कि 500 से भी ज्यादा हो जाती है बहुत कुछ इलाकों में। तो दैट इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन टू फॉर अस। सो ये हमें देखना चाहिए कि इसका स्टैंडर्ड हमें पता होना चाहिए कि इट शुड बी बिलो 100 एंड बिलो 100 इज गुड, एनीथिंग अबव 100 मींस इट इज अनहेल्दी। ठीक है, this is it about air quality। inshallah in the upcoming lecture we'll talk about indoor air pollution। this was about outdoor air pollution, जो हमारी आबो हवा है बाहर की, उसकी हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे जो इंडोर एयर पोल्यूशन होती है, यानी एयर बिटवीन प्रेजेंट इन द बिल्डिंग्स और एयर प्रेजेंट इन आवर होम्स। so this is it about air pollution and especially outdoor air pollution। thank you very much। inshallah in next class we'll talk about indoor air pollution। thank you।